Hello and welcome. This is part 7 of India's foreign policy. And in this part, I'm going to discuss about the nuclear policy of India. In the previous parts of the chapter, I have done the basic features of India's foreign policy and India's relations with China, USA, Russia, and Israel. Okay, now this is the last part, and in here we are going to discuss the nuclear policy of India, which is a very major component of India's foreign policy. So let's begin. So, if we have to discuss India's nuclear policy, we should start it from one person, and that is Dr. Homi J. Bhabha. So, he is the father of India's nuclear program. Actually, when India became independent, you have to remember that India became independent after the Second World War, and the Second World War ended on a very bad note when USA dropped atom bombs on Japan. So the atmosphere here in India, amongst the political circles, the opinion was very much against the nuclear weapons. Okay, that is one thing. Another thing is that Nehru, who was the Prime Minister of India and the foreign minister, his own foreign minister also, was not in favor of nuclear weapons. He was not in favor of nuclear weapons. So the nuclear program of India started a bit late as far as developing nuclear weapons are concerned. Okay, after so much of efforts, Dr. Bhabha was successful in convincing the leaders about the peaceful use of the nuclear technology of the nuclear energy. Okay, so that way the program is started, and then the Bhabha Atomic Center was established. You have to tell me in the comment section that where this center is. Okay, so Bhabha Atomic Research Center. So this was established, and then in the 60s 60s तक लग गया था टाइम जब आते आते इस प्रोग्राम ने मोमेंटम गेन किया. और उसका भी रीज़न ये था दैट एज वी वेंट फॉरवर्ड इन टाइम, जैसे कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं और हम वॉर्स हमें लड़नी पड़ी विद चाइना, विद पाकिस्तान, and then the leaders got to realize the importance of nuclear weapons as a deterrent. ओके, डेटरेंट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड बाय नाउ कि जो एक डर की तरह काम करता है दूसरे नेशंस के लिए कि इन केस अगर वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमारी सिक्योरिटी को हार्म करते हैं, और इफ दे गो ऑन एंड यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट अस, देन वी ऑल्सो possess nuclear weapon. Okay, and we would be using it in that circumstance. This is called nuclear deterrence. तो ये जो रियलाइजेशन था कि न्यूक्लियर वेपन्स का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है फॉर डेटरेंस, स्पेशली लुकिंग एट आर ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑन द ग्लोब. तो हम चारों तरफ से जब दुश्मनों से घिरे हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, तो उस समय हमारी सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करें. ठीक है, उसके बाद फिर चाइना ने भी अपना 60s में चाइना ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया. फिर जब इंदिरा गांधी बनती हैं हमारी प्राइम मिनिस्टर, तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम एक मोमेंटम गेन करता है because she was actually in favor of acquiring nuclear weapons to follow an independent foreign policy more vigorously. Okay, तो इस तरह से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो हमारा मोमेंटम, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1964. ओके, और उस समय तक वर्ल्ड में 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स थी, यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस एंड चाइना, जो कि आपके सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं. ओके, तो इन्हीं के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, ये भी यही न्यूक्लियर पावर्स थी. तो 1968 में ये जो पावर्स थी एक ट्रीटी लेकर आते हैं जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी. ये ट्रीटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कहीं भी न्यूक्लियर मैनेजमेंट, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन होगा उसमें ये ट्रीटी का मेंशन जरूर होगा. ओके, सो इसको अच्छी तरह समझिए कि ये थी क्या. इसको एनपीटी कहते हैं, यूजुअली नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है. तो एनपीटी वाज
in a way a treaty that prevented the proliferation of nuclear weapons, कि और countries न्यूक्लियर वेपन को मैन्युफैक्चर या ऑक्यूपाई ना कर पाए। ओके तो ये न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन को, उनके फैलाव को रोकने वाली ट्रीटी थी। इस ट्रीटी में ये कहा गया था कि इन 5 न्यूक्लियर वेपन पोजेस कंट्रीज के अलावा, इन 5 न्यूक्लियर पावर्स के अलावा यूएसए, यूके, यूएसएसआर, चाइना और फ्रांस, इनके अलावा किसी भी और कंट्री के लिए न्यूक्लियर टेस्ट करना बैंड है। ओके, इट प्रोहिबिटेड any other country apart from these nuclear 5 states to conduct any kinds of nuclear test। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी कंट्रीज एनपीटी पे साइन करेंगे वो इस चीज के लिए अग्री कर रहे हैं कि वो कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। ये ट्रीटी आई थी 1968 में एंड इंडिया रिफ्यूज टू साइन दिस न्यूक्लियर ट्रीटी एंड इंडिया इज still refuses to sign this nuclear treaty. Why? Because it says that this NPT is discriminatory. इंडिया का ये कहना है कि केवल ये 5 देश न्यूक्लियर पावर रहे और बाकी कोई ना बने, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। या तो फिर ऐसा हो कि ये 5 देश भी इस जितने भी उनके पास एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करें। ओके, तब तो इस ट्रीटी का कोई मतलब बनता है, तब ये जो वर्ड होगा वो न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ड होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर इस ट्रीटी को हम सपोर्ट करते हैं और साइन करते हैं, इस ट्रीटी का रिजल्ट क्या होगा? इस ट्रीटी का रिजल्ट ये होगा कि केवल इन 5 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इन 5 देशों की दादागिरी तो ऐसे ही चलती रहेगी और जो बाकी देश हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी नहीं होंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंडिया cited this reason that India said that it is discriminatory, we oppose this treaty and we will never be signing this treaty. So India refused to sign this treaty. उसके बाद फिर इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया 1974 में। द डेट वॉज 18th May 1974 को एक्सप्लोजन किया गया था पोखरन में, राजस्थान में, और इस ऑपरेशन का जो नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। And this was a peaceful nuclear explosion. It was partially successful. And why the name was Smiling Buddha? If anyone of you can tell me in the comment section. Okay, why the name? Why this name? Operation, this first nuclear explosion operation, it was called Smiling Buddha. Why only Smiling Buddha? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद फिर इंडिया ने एनपीटी की इंडेफिनिट एक्सटेंशन को भी अपोज किया 1995 ने। उसके बाद एक ट्रीटी आई थी न्यूक्लियर मैनेजमेंट के क्षेत्र में जिसमें जिसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT। ये याद रखिए, एनपीटी और CTBT का फुल फॉर्म बोर्ड में बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर कुछ ना याद कर पाइए तो एटलीस्ट इतना। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी में ये कहा गया था कि देखिए उसमें 2 चीज़ें थी मेनली। पहली तो ये थी कि ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स आर बैन एंड फॉर ऑल द कंट्रीज। ओके, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करें न्यूक्लियर पोजेस्ड और न्यूक्लियर नॉन पोजेस्ड। ठीक है, तो ये कहा गया कि सारी टेस्टिंग बैन है, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग फॉर ऑल कंट्रीज। ठीक, पहली चीज यहाँ पे उन्होंने इंडिया की बात को स्वीकार कर लिया। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि CTBT तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी जब तक कि सारे कंट्रीज इस पे साइन नहीं कर देते हैं। ठीक, इंडिया ने फिर रिफ्यूज किया फ्रॉम साइनिंग इट। इंडिया ने क्यों रिफ्यूज किया? अब की बार इंडिया ने ये कहा कि आप ये कह रहे हैं कि टेस्ट बैन हो जाएंगे, मगर जो एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स ऑफ वेपन्स है उसका क्या? अभी भी अगर एट प्रेजेंट आप उसके बाद मत बनाइए, आज की डेट के बाद आप न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाइए, मगर अभी तक जो न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा जो बड़े बड़े देशों ने जुटा के रखा हुआ है वो तो वो उसको यूज ही कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं। तो जब तक आप उसको नहीं डिस्ट्रॉय करते हैं देन हाउ कैन यू कॉल दिस वर्ड न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ड? सो इंडिया रिफ्यूज टू साइन दिस CTBT। और आपको पता है कि जब भी इंडिया ऐसी चीज करता है तो पाकिस्तान उसको फॉलो करता है, तो पाकिस्तान ने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम भी नहीं साइन करेंगे, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि CTBT प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई।
Okay, then India conducted a series of nuclear tests in May 1998. Prime Minister at that time was Mr. Atal Bihari Vajpayee. इसकी डेट जो थी वो थी 11th to 13th, 11 से 13 मई के बीच में 1998 में इंडिया ने इन टोटल 5 टेस्ट किए थे. सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट मीन्स कई टेस्ट हुए थे, 5 टेस्ट वर कंडक्टेड. And this operation was called Operation Shakti. ठीक है, ऑपरेशन शक्ति इसको नाम दिया गया था. ये फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इनको तो सब आप पहचानते ही हैं. आर वेरी डियर डॉक्टर APJ अबुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. ये हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर हैड, अटल बिहारी वाजपेयी जी. ठीक है, तो और ये किस तरह से इस ऑपरेशन, इसको पोखरण 2 भी कहा जाता है, इस तरह से आप गूगल कर सकते हैं, पोखरण 2 भी कहा जाता है. और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी जो आई है, जो आप लोगों को देखनी चाहिए कि किस तरह से कितने डायमेंशन इन्वॉल्व होते हैं किसी कंट्रीज को पोखरण ये न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, किस सर्कमस्टांस में कितने इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स जो थे, उसके बावजूद इंडिया ने ये टेस्ट किया था. तो पोखरण करके एक मूवी आई है, उसको देखिएगा. इन टेस्ट के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी किए, जैसा कि हमेशा पाकिस्तान करता है. तो पाकिस्तान ने 6 टेस्ट किए, और उसके बाद ये दोनों ही कंट्रीज पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए थे. हालांकि वो सैंक्शंस बाद में अपलिफ्ट कर ली गई, USA ने सैंक्शंस लगा दी थी, पर वो सैंक्शंस बाद में अपलिफ्ट हो गई. ठीक है, तो ये इंडिया, आप अभी तक जो आपने देखा उसमें ये आपको समझ में आया क्या? बेसिकली 2 बातें निकल कर आई. पहली तो कि इन फेस ऑफ ऑल द थ्रेट्स इंटरनेशनली दैट आर एग्जिस्टिंग फॉर इंडिया, इंडिया डिसाइडेड टू परस्यू अ न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर, बेसिकली द फर्स्ट रीजन वॉज फॉर डेटरेंस. ठीक है, डेटरेंस के लिए हमने उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू किया, और वो सारा इंटरनेशनल प्रेशर झेलते हुए हमने उस प्रोग्राम को परस्यू किया. ठीक है, एक और जो चीज़ है न्यूक्लियर पॉलिसी में इंडिया की जो रही, जब ये 1998 में ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ पोखरण 2, उसके बाद फिर जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी फ्रेम की गवर्नमेंट ने, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी नो फर्स्ट यूज़. इसको NFU जनरली ऐसे बोला जाता है पॉलिसी सर्कल्स में. तो NFU का पर्पस ये था, ये दिखाना था कि वी आर ऑलवेज पीस ओरिएंटेड, कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका भी जो बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है पीस ओरिएंटेड. तो हम शांति की बात करते हैं, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ तभी करेंगे जब हमारे अगेंस्ट वो यूज़ होगा. इसी को कहते हैं नो फर्स्ट यूज़, कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, हम न्यूक्लियर वेपन को पहले यूज़ नहीं करेंगे. एंड दैट रीइटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू ग्लोबल वेरीफिएबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. ये बहुत लंबा टर्म है, मगर इसको आप याद कर लीजिए. ग्लोबल मतलब कि पूरे विश्व में, वेरीफिएबल जिसको वेरीफाई किया जा सके, नॉन डिस्क्रिमिनेटली जिसमें किसी भी कंट्री के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जिसमें सारे कंट्रीज अपने एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉक पाइल्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, और ये भी कमिटमेंट लेंगे कि वो आगे कोई न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे. तभी ये वर्ड न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बनेगा. तो अगर ऐसा कोई एफर्ट होता है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का, तब इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है, अब तक की पॉलिसी ये थी. द प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट हैज गिवन अ मेजर ट्विस्ट टू दिस पॉलिसी which came after इंडिया ने जब मेजर टेररिस्ट अटैक्स झेले पाकिस्तान के साइड से, तब उसके बाद फिर एक मेजर ट्विस्ट आता है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में. तो लास्ट ईयर बहुत मेजर इवेंट्स हुए हैं हमारे प्रिय दुश्मन के साथ, पाकिस्तान के साथ. तो उन्होंने जब हमारे यहाँ आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तब उधर से बहुत सारे एफर्ट्स हुए हमारी शांति को भंग करने के लिए. और इन्हीं सारे उसके बीच में राजनाथ सिंह ने विज़िट किया था पोखरण 2 के साइट को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ एनिवर्सरी पे. तो वहाँ पे उन्होंने ये अनाउंस किया कि इंडिया कैन रीथिंक
इट्स पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज। ये बहुत मेजर इंडिकेशन था, और ये मेजर इंडिकेशन इस सेंस में भी था कि हम हमारी जो हमारा जो पीस ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी है उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। इट वॉज अ क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान दैट यू शुड नॉट कंसिडर अस वीक। सो आर हमारी जो अच्छाई है वो हमको कमज़ोर नहीं बनाती। ठीक है, तो ये एक क्लियर मैसेज था इस सेंस में, और ये कहा गया कि इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड हुज क्लियर इंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द नो फर्स्ट यूज, बट इन व्यू ऑफ कंटेम्पररी रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस द प्रेजेंट गवर्नमेंट of Narendra Modi made it clear that policy of no first use can be reviewed and changed in consonance with India's regional and national security. Got it? तो हमने एक क्लियर मैसेज दिया था कि अगर हमारी सिक्योरिटी को इसी तरह से चैलेंज किया जाता रहेगा तो हम अपनी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को गिव अप भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने कह दिया कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए एक कोई पत्थर की लकीर बन गई। उसको हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं, और हम पहले भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी ये डिमांड करती है तो। ठीक है, दूसरी चीज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में जो चेंज आ रहा है वो है दैट इंडिया इज ईगरली सीकिंग फॉर द मेंबरशिप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। नाउ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इज नॉट इन योर डिटेल इन योर सिलेबस, बट ये है क्या, ये एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ नेशंस है जो कि न्यूक्लियर कॉमर्स कर सकते हैं। तो इसका एक मेन एक्चुअली ये फॉर्म ही हुआ था जब इंडिया ने 1974 में अपना पहला टेस्ट किया था। उसके बाद जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे उन्होंने ये फॉर्म किया था कि इस तरह से तो जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो भी न्यूक्लियर वेपन्स ऑक्यूपाई कर लेंगे और न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज़्यादा देशों के पास हो जाएगा। तो इनका अगर प्रोलिफरेशन रोकना है तो हमको एक न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप फॉर्म करना चाहिए जिसमें हम इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किस कंट्री से किस कंट्री को जा रही है। ओके, तो उसमें फॉर्म हुआ था। अब सिचुएशन ये है कि इंडिया खुद इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है बिकॉज वी वांट टू ट्रेड इन न्यूक्लियर कॉमर्स, वी वांट टू बी अ मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर कॉमर्स ग्रुप, और हम इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एक्वायर करना चाहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के से रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, इसको चाइना विगरसली अपोज कर रहा है बिकॉज चाइना यही कह रहा है कि इंडिया इज ए नॉन एनपीटी स्टेट। इंडिया ने अभी तक एनपीटी साइन नहीं की है, और इसका ये एक मेन क्लॉज है एनएसजी का कि द नेशन हु इज अ मेंबर ऑफ द एनएसजी शुड बी अ मेंबर ऑफ द एनपीटी एज वेल। ओके, तो बिकॉज इंडिया इज अ नॉन एनपीटी स्टेट तो इंडिया एनएसजी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, लेकिन यूएस इसको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। और यूएस ने यहाँ तक कहा है कि इंडिया इज द ओनली स्टेट आउटसाइड द एनपीटी ग्रुप, जो एनपीटी का जो कंट्रीज हैं, इंडिया इज द ओनली नॉन एनपीटी कंट्री हु इज अ मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर कॉमर्स एज वेल, जो कि न्यूक्लियर कॉमर्स कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि यूएस सपोर्ट कर रहा है हमें, और इन फ्यूचर इंडिया में बिकम अ मेंबर ऑफ द एनएसजी एज वेल। अदरवाइज आवर अपोजिशन टू द न्यूक्लियर ट्रीटी सीटीबीटी एंड एनपीटी goes as it was. Okay, so these are the main features of India's nuclear program. Nuclear program for any country is an important component of the foreign policy because it gives you a very important place in international politics. Okay, तो इसलिए हम इसको विगरसली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब ये चैप्टर आपका कंटेंट वाइज कंप्लीट हो गया है। वॉट एवर न्यू कंटेंट ऑल्सो हैड कम। तो अभी मैं एक बार फिर क्लैरिफाई कर दूं, अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड सिलेबस इस साल के लिए जो आपको पढ़ना है वो यही 7 पार्ट्स हैं जो मैंने अपडेट किए हैं, जो मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे अभी तक। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, इनसे रिलेटेड जो क्वेरीज है वो आप पूछ लीजिए। कंटेंट मैंने मोर देन इनफ दिया है, उससे ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं आएगा। एट मोस्ट यू विल गेट 1 6 मार्कर from any of these topics, either it is China, Indo-China relations, or Indo-Russian relations, or Indo-US relations, or Indo-Israeli relations, not more than 6 marks, or India's nuclear policy, and I think the content is enough for writing any answer of 6 marks. Okay, so just prepare this. That's all for this video. Thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye.